Hello, can you hear me? Everyone, can you hear me? Yes, Yes, ma'am. yes, madam. Yes, yes, ma'am. Okay then. Okay, good evening. How Yes. are you all? Good. Good evening. Good evening. So shall yeah, fine, man. I start? Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Good evening, everyone. Good Okay. evening, madam. Yeah, good evening. So shall I start now or shall I wait for a few minutes more? Okay then. So let's begin our class. So welcome to my class, everyone. My name is Sunita Maurya. I have completed my graduation in computer science and engineering, just a second, from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University in the year 2016. Okay. So right now I'm working as a global head technology and incubation center in one company that so before that I want to know I just want to know why you all are here. Are you informed about this class? Yes, madam. Okay then. So well, I'm highly enthusiastic for the class today, and I want to know about you all before we begin. Like why we all are here. What was the purpose of joining this class today? So can anyone tell me why you all are here? Why you have gathered here? Yes, madam. Actually, my communication is not very well, Okay, but I joined your class. okay, that's great. So we will work on that. So hope for the best in future. You मैडम give your. आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। Can you hear me now? Hello. Yeah, man. Okay, madam. Okay. Okay. Okay then. So, well, I am here to make you understand how important personality development is for an individual. For getting in, just a second. Now people are coming. Okay, let me wait for a few minutes. Okay, then we will begin. So, how was your day? How was your day, everyone? Was it good? Was it hectic? Similar, madam. Not good, not bad. Like Okay, okay, no problem. Well, everyone has their own routine. They just do their work, get busy with that. So I think I should start now. Okay. So I am here to make you all understand how important personality development is not only for individual but for means if there. Okay, I'm just giving a few minutes more for others to join. Okay, 5 minutes. Let's wait for 5 minutes. So till then, just let me know about you all. Who is Mohammed Said is here. Can you please turn on your mic? Yes, ma'am. So may I know about you? What you're doing So, right now? uh, my name is MD Shahid Ansari, Yeah. and I belong to Jharkhand. Okay. And I completed diploma in civil engineering. That's wonderful. And currently, I'm doing BIM internship from Unix Civil. Okay. Okay. And I work in Shapurji Palonji for 5 years as a site Okay. supervisor in Dubai. Okay. And that's all about me. Okay. That's wonderful. Then here is Ashutosh Vishkarma. Yes, ma'am. May I know about you? What you're doing right now? I am introduced as Ashutosh Vishwakarma. I am basically from Gorakhpur, Uttar Oh. Pradesh. Okay. Currently live in Meerut. Okay. I am pursuing my diploma DN Polytechnic and I Okay. am pursuing BIM professional course Unit Civil. Okay. Wonderful. My So hobby is playing cricket. that I will tell you when you are going to introduce yourself in briefly after the class. Right now we will focus on our today's class because all are here for this class, right? To know what we are going to do for today's class. So we will get to know about every one of you after the discussion. Okay. So good evening, everyone. Satyanshu, good evening. Prabhakar, good evening. Okay.
So as I said, how important personality development is for everyone. Like for individual, it is an important part. Like you can call it like without communication, it is difficult to means you can't talk properly with people if you are not aware with this communication, or your information will not be received properly by the others. Okay, so if you want your means personality development is important for individual to get into a respected job in top MNCs also. So I want to begin this class by listening to your views also, like how important this communication is. So just some of you, can you please tell me how important communication or personality development is? Anyone? Yeah, Ritik? Yes, ma'am. Yeah, Yes, ma'am. yeah, Yes, ma'am. Hi guys, I'm Ritik Mehta. yeah. Like, I'm currently studying in Indian Institute of Technology, Palakkad, Okay, and I am currently pursuing my master's in construction management. I am in the second semester. okay, I belong to Mumbai, but currently I'm in Kerala. And like, I think so, construction management and roles which have management, people should have a very good communication with whatever they meet, whoever they meet, because there are stakeholders, there are architects, structural yeah, engineers, and there are many other labors. There is lots of different kinds of people who belong to different categories, socio-economic groups. And like, if we don't communicate well, we don't communicate well with our marketing, sales team, and our owners or a client, that will hamper our progress as a construction yeah, management role. I very, think so. yeah, wonderful. And what about others? Anyone else? I want to hear from others also. Anyone else have their views on this communication and personality development? Just let me your name, okay? Right now, your what you are doing right now, or what your education is, your position, right? If you are working professional, then you can tell me about your position, and then you can start your views on personality development. Then after that, I will begin the class, okay? So one by one, I will just give 5 minutes for this. Sahid, can you please tell me Yes, ma'am. what are your views on personality development, communication and personality development? In my thought, ma'am, where I belong to this that uh, profession, Yeah, it is international profession. So we can communicate to uh, international members like semi stakeholder, engineer, and construction manager. So it is most important for me. so do you face difficulty while communicating with them? Yes, ma'am, there's lot. What type of difficulty you face? When I go to speak in English, Yeah, yeah, so my mind is unable to construct a word. like what to speak while talking to them, Sorry, ma'am. like what to speak while talking to them, like how to convey your information. Sorry, unable to get, ma'am. I'm saying, do you understand Hindi? Yes, ma'am. ओके तो मैं ये कह रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को सामने वाले तक रखते हो, वो आपको मतलब उस पर सीखना है कि मैं मेरे इन्फॉर्मेशन अच्छे से लोगों तक पहुँचे, राइट? आप ये कह रहे हो? Yes, ma'am. ओके, सो कोई बात नहीं, हम आने वाली क्लासेस में सब कुछ सीखते रहेंगे. ओके, जस्ट अ सेकंड, पीपल आर कमिंग नाउ. ओके, सो जस्ट से हिप हिप हुर्रे फॉर नाउ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास. Yes, ma'am. Okay, so let me share my screen, just a second. Just tell me if you can see my screen, okay, everyone? Okay, so now can you hear me now? ma'am. Is my screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then great. Okay.
So we are here to improve your communication and presentation skill. As I said, my name is Sunita Maurya. So I am introducing myself, okay, over here, and right now I am working as a global head technology and incubation center also. Okay. So let me move further. So before this, what comes to your mind when you hear this word communication and presentation? What is communication? कम्युनिकेशन इज़ व्हाट? इट्स अ प्रोसेस, राइट? कम्युनिकेशन क्या एक ज़रिया है, राइट, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, राइट? हेलो, कैन Yes, ma'am. यस ओ यस मैम Yes, ma'am. प्रेजेंटेशन क्या मैम है? हिंदी इंग्लिश दोनों बढ़िया मिक्स करके समझाइए ना। ओके ओके, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन वो है जो हम सामने वाले को दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि हम अपने आप को हो सकता है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा वगैरह हो, उसको किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आप प्रेजेंटेशन समझ। जैसे अभी आपके सामने मैं स्लाइड को प्रेजेंट कर रही हूँ, राइट, तो मैं आने वाले टाइम पे आपको किस तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, वो एक तरह से मेरा प्रेजेंटेशन होगा ना, कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, किस तरीके से आप उन चीज़ों को सामने वाले को समझा रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो चीज़ों पे हम वर्क करेंगे। ओके, सो नाउ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, समझने वाले हैं एक तरह से कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट कम्युनिकेशन स्किल कंप्राइजेस, मतलब कम्युनिकेशन किन चीज़ों से बनता है, ओके, किस तरीके से हम कम्युनिकेट करें, कुछ कॉमन तरीके होंगे, कॉमन वे टू कम्युनिकेट, ओके। कम्युनिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे कि आखिर हम कम्युनिकेट क्यों करना चाहते हैं, ओके। बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और रिक्रूटर्स क्या चाहते हैं हमसे, व्हाट डू रिक्रूटर्स वांट फ्रॉम अस। फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स हम वो जानेंगे। उसके बाद हम अपने स्किल्स को प्रूव कैसे करेंगे रिक्रूटर्स को कि या हमारे पास ये स्किल है, आप हमको हायर कर लीजिए, ओके। अगला है हाउ टू इम्प्रूव योर रिटन कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू इम्प्रूव योर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब बोलने का, हम कह सकते हैं किस तरीके से हम अपनी बातों को सामने वाले तक रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं आपके जेस्चर्स, कि आपके एटिकेट्स वगैरह भी इसमें आते हैं, जिसको मतलब हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स जानेंगे हम। उसके बाद क्लासेस हमारी कैसे चलेंगी वो बताऊंगी मैं। फ्लो, जैसे आज पर्टिकुलर क्लास चल रही है तो वो उसका फ्लो क्या होगा आज के क्लास का। उसके बाद टॉपिक टाइमलाइन मीन्स उसमें क्या फ्लो ऑफ द क्लास में हम सिलेबस भी बता देंगे आपको कि हम क्या आने वाले क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं इन 3 महीनों में। उसके बाद पर्टिकुलर क्लास का पर डे का हम क्या टास्क होगा हमारा वो डिस्कस करेंगे। आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का टॉपिक क्या होगा वो बताएंगे आपको, शेड्यूल भी बता दिया जाएगा, और ओवरऑल समरी भी आपको आज की क्लास की मैं बता दूँगी। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक आता है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस। ओके, कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बोल के ही कम्युनिकेट किया जाए, राइट। कम्युनिकेशन ज़रूरी है हम बोल के ही कम्युनिकेट कर सकें दूसरों से। कोई बता सकता है कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है? कैन एनीवन टेल मी हाउ, व्हाट आर द अदर वेज टू कम्युनिकेट? मैम बोल के कर सकते हैं, मैसेज द्वारा कर सकते हैं, और जिसको और वर्बल हो इशारों सकता है से मैम, हाँ। और राइटिंग और Here is another one is इशारों में हो सकता है। ओके ओके, by giving Body signing. language, body language, body language, कोई कुछ बॉडी कह रहा था? लैंग्वेज मैम Okay, yeah, बोलकर होता बिल्कुल है, बिल्कुल body बिल्कुल। language, madam. राइटिंग Correct. कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं ये वर्ड कम्युनिकेशन है क्या। ओके, कम्युनिकेशन एक तरह से कह सकते हैं एबिलिटी मीन्स प्रोसेस है, और कम्युनिकेशन स्किल क्या है? एबिलिटी है। ओके, कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है? सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन या मैसेज होता है, ओके, वर्बली या नॉन वर्बल मेथड्स के थ्रू। हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? कोई बता सकता है हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड कम्युनिकेशन? Properly message दूसरे तक पहुंचाना। Expressing idea and feelings and To convey the information and information to other. बिल्कुल, और हम ताकि अपने मतलब जो सामने वाला उसे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सके, राइट। अगर सामने वाले को समझ में ही नहीं आया तो आप कैसे उससे कम्युनिकेट करोगे?
हो सकता है आपको बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी हो, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, राइट? लाइक सामने वाले को समझाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरिया ढूंढना पड़ेगा ना कि कम्युनिकेट करना है हमको, हम अपने लिख के उनसे कम्युनिकेट, हो सकता है वो उनकी लैंग्वेज भी अलग हो, उनसे कैसे कम्युनिकेट करोगे? उनका भी लैंग्वेज अलग होगा, तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? वो मैं आपको बताऊंगी आने वाले क्लासेस में। बट अभी मैं ये बता सकती हूँ कि अगर हमें उनका लैंग्वेज नहीं आता है, तो हम हो सकता है कि अपने जेस्चर्स के थ्रू समझा सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। जैसे आजकल टूल्स भी अवेलेबल है, गूगल ट्रांसलेटर टूल्स भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें अगर हमें उनकी लैंग्वेज ना आती हो तो हम उसका रिकॉर्ड करके उनको ट्रांसलेट करके फिर वो ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं, उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन क्या एक प्रोसेस है एक्सप्रेस करने का, क्या आपका आइडिया, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लास सही चल रही है? आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है? No, madam, no. नो मैम। ओके देन, सो कम्युनिकेशन स्किल किन चीज़ों से बनता है हम वो समझते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल में कुछ चीज़ें होंगी जिसमें हम राइटिंग स्किल होंगी, 90% कंस्टिट्यूट करती है, लिसनिंग स्किल 45% कंस्टिट्यूट करती है, रीडिंग स्किल 16% कंस्टिट्यूट करती है और स्पीकिंग स्किल 30% कंस्टिट्यूट करती है। ओके, सो हम इन इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानते हैं। जैसे राइटिंग कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन होता है, तो हम रिटन कम्युनिकेशन में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किसे करते हैं? थ्रू रिटन लैंग्वेज, राइट? हम लिख के लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, राइट? रिटन कम्युनिकेशन वो एक तरह से आपका राइटिंग स्किल्स में आएगा। ओके ओके Yes, ma'am. ओके मैम। ओके देन, सो नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम आप कह सकते हैं स्पीकिंग स्किल में भी आ सकता है वो। ओरल कम्युनिकेशन हम क्या करेंगे, उसमें हम अपने इन्फॉर्मेशन को कैसे दूसरों तक पहुंचाएंगे? बोल के, राइट? थ्रू द यूज ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, राइट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल या फिर विजुअल कम्युनिकेशन, जिसे हम कहेंगे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे नहीं सॉरी, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अभी मैं डिस्कस करती हूँ। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन में हम इमेजेस का यूज़ करते हैं, राइट? लोगों को, या कलर्स का भी हम यूज़ करते हैं कि ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, राइट? या दैट पर्सन इज़ ब्लैक, दिस पर्सन इज़ वाइट इन कलर, आई डोंट लाइक ब्लैक पर्सन, some type of information you convey, right? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Okay. फिर होता है एक्टिव लिसनिंग, मतलब आपका लिसनिंग स्किल, आप जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसको सही से सुन रहे हो कि नहीं, और सुनने के बाद उस चीज़ को आप अच्छे से कह सकते हैं कि अपने शब्दों में आप सामने वाले को वो एक तरह से रीस्टेट कर सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं कि आपने क्या क्या समझा। जैसे मैं अभी कुछ लोगों से पूछूंगी मैंने अभी क्या बताया, तो आप मुझे अच्छे से बता पाते हो कि नहीं, वो आपका लिसनिंग स्किल होगा, एक्टिव लिसनिंग स्किल। ओके ओके, सो अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा होगा तो आप क्या, इससे आपको क्या मदद मिलेगी, कोई बता सकता है? चीजों को मैम ऑब्जर्व जल्दी कर पाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होता है। जी बिल्कुल, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप अवॉइड कर सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग, आप अपने आप को ओपन अप कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को Otherwise, easy हो सॉल्व कर जाएगा। सकते हो, राइट? ट्रस्ट बिल्ड अप कर सकते हो। ओके, एक और कम्युनिकेशन की बात आ रही है, कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन। ओके, कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन वो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करना चाहते हो, राइट? जैसे कि प्रोफेशनल हो तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप कंपनी वगैरह में हो तो आप अपने कलीग्स वगैरह से बात करना चाहते हो, प्रोफेशनली मैनेजर से बात करना चाहते हो, या कोई क्रॉस कल्चरल होगा, या जैसे अभी ऑनलाइन हमारी बात चल रही है, अभी ये कम्युनिकेशन रिलेटेड हमारी कम्युनिकेशन चल रही है, राइट? हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो कॉमन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे कोई डाउट आप लोग को? No. ओके, नेक्स्ट है नहीं मैम। ओके, सो कॉमन वेज क्या है कम्युनिकेशन के? कॉमन वेज क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन के? आपके बॉडी लैंग्वेज, राइट? बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या होगा? Posture. मैम फेस एक्सप्रेशन हो सकता है, या और मतलब बहुत लोग मैम हेजिटेशन टाइप Time, करते हैं, तो time. उनका लैंग्वेज से क्लियर वॉइस नहीं होता है, ये सब हो सकता है। ओके,
ठीक है, अब विजुअल इमेजेस में क्या क्या हो सकते हैं? यस मैडम। विजुअल इमेजेस में क्या क्या हो सकते हैं? विजुअल इमेजेस मीन्स आप मैडम अपनी बातों, ट्रैफिक इमेजेस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे? मूवमेंट, ऑल मूवमेंट्स मैडम, बॉडी मूवमेंट्स, ऑल बॉडी मूवमेंट्स। ड्राइंग कलर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कलर रेड कलर, ब्लैक कलर, ये भी एक तरह से मतलब लोगों को पता चल जाएगा हाँ ये रेड कलर ही है, ये ग्रीन कलर ही है, राइट। और ग्राफिक डिजाइनिंग अभी किसी ने बताया, वो भी विजुअल इमेजेस में आएगा। ओके, अब रिटर्न में क्या होगा? रिटर्न में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? रिटर्न में मैम लेटर वगैरह तो या किसी को मैसेज करते हैं तो वो रिटर्न में ही आता है। टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, ऐसे हो गए, ईमेल्स हो गए, बिल्कुल बिल्कुल सही। सो उसके बाद है स्पोकन वर्ड्स, मीन्स वर्बली आप कह सकते हैं कि कैसे कम्युनिकेट करेंगे लोगों से। मैम वर्बली डायरेक्ट, जैसे किसी से डायरेक्ट बातें करना, कोई तो इसको वर्बली कर सकते स्टोरी हैं। टेलिंग भी है, कह सकते हैं आप। डिबेट वगैरह भी आप बोलते हो ना, एक तरह से वो भी आपका फेस टू फेस मैम। फेस टू फेस भी कह सकते हो। ओके डन, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक हमने समझा क्या क्या, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किससे बनता है, और क्या कॉमन तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, राइट। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, राइट। कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हम कम्युनिकेशन से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लाइक किसी कंपनी को अपना ब्रांड प्रमोट करना है, तो वो सामने वाले को बताएगा ना कम्युनिकेट करके कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए। कस्टमर वगैरह से करते हैं कि नहीं, Yes, right, sir. राइट। फिर उसके बाद आता है डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। लाइक इंफॉर्मेशन को आप, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस वगैरह होते हैं उनको आप कन्वे करते हो कि हाँ ये ऐसे है वैसे है करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो। दूसरा है आपका चेंज एटीट्यूड, हम फर्दर समझेंगे आने वाले क्लासेस में भी इसको। उसके बाद चेंजेस एटीट्यूड मीन्स कम्युनिकेशन की वजह से आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है, राइट। एंड नेक्स्ट आपका बिहेवियर भी चेंज होता है। ओके ना, बाकी जो ऊपर के दो है उससे आप क्या करते हो, अपने आप दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ें, उसको आप जो है उस पर फोकस करते हो ना, उसको कैप्चर करने के साथ सामने वाला क्या सोच रहा है और हम क्या चाहते हैं उस पर फोकस करते हैं। बाकी के दो जो होते हैं आप टारगेट ऑडियंस पे फोकस करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। मीन्स लाइक आप खड़े होके स्पीच वगैरह डिबेट वगैरह दे रहे हो, तो वहाँ से भी आप टारगेट ऑडियंस को भी वो कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बिजनेस में कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके हैं। ओके, बिजनेस में क्या कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं? डीलिंग में क्या डीलिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग। ओके, और कुछ? प्रोडक्ट प्रमोशन, बिल्कुल, सेलिंग प्रोडक्ट, सेलिंग मैडम। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे है, तो यहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, दूसरे तक पहुँचाते हैं, राइट। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स मेंबर्स जो होते हैं, जैसे आपके कंपनी में मेंबर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, उनके नीचे कुछ लोग होंगे, तो हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, राइट, कि हाँ ये चल रहा है वो चल रहा है कंपनी में, ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं। तो बिजनेस में हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, राइट। यस मैम। फिर डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को कुछ डायरेक्शन मिलते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, राइट। और कुछ क्लाइंट से आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कुछ क्लाइंट से आपको मतलब डील करना है, ये सब सिखाया जाता है, आपको डायरेक्ट किया जाता है कि अच्छा आपका ये काम है, आप बस इतने तक ही करो, कुछ डायरेक्शन दे दिया जाता है आपको ऑलरेडी, राइट। तो वो चीज़ें कौन बताता है, आपके ऊपर जो होगा वो डायरेक्ट कर सकते हैं, आपके कलीग वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद इंक्रीज द एफिशिएंसी क्या था, आपकी अगर एफिशिएंसी अच्छी होगी, राइट, तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा कि नहीं। Yes, madam. यस मैम। बिजनेस में और क्या इम्पोर्टेंट है, हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट।
कि हम हमारा Yes, कोई ma'am. भी प्रोडक्ट हो उनको खरीदने के लिए हम राज़ी करवाते हैं, परसुएट करते हैं कि आप ले लीजिए। किसी भी तरीके से कस्टमर को बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, खासकर से अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो और सर्विसेज रिलेटेड भी होते हैं, तब वहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कम्युनिकेशन के थ्रू। किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हो अच्छे से। ओके, उसके बाद डेवलपिंग बेटर इमेज। आप समझ सकते हो बेटर इमेज क्या मीन्स। आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो सामने वाले को लगे कि यार ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एटिकेट्स हैं इसके, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, इसको आता है ऐसे करके। ये सब पे ध्यान दिया जाता है बिजनेस वगैरह में, राइट। कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। और उसमें क्या होता है कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करता है। अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो गोल्स हमारे अचीवमेंट मतलब जल्दी होंगे, अच्छे होंगे। उसके बाद क्या है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन भी देना ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन के लिए। मीन्स उनको प्रमोशन वगैरह भी देते हैं हम लोग, उनको बताते हैं कि यार यू डिड अ वंडरफुल जॉब, यू रिप्रेजेंटेड दिस पर्टिकुलर थिंग सो वंडरफुल लाइक दिस, ऐसे करके उनको मोटिवेशन भी मिलता रहता है। फिर उनको जॉब सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि वो काम कर रहे हैं, मीन्स हो सकता है एम्प्लॉय किसी का पर्सनल प्रॉब्लम हो, राइट, तो वो हो सकता है कि कम्युनिकेट ना कर पा रहा हो, तो लेकिन कंपनी में ज़रूरी होता है कि हम कुछ चीज़ें थोड़ा उनको भी वो रिलैक्सेशन देना चाहिए, जहाँ पे मतलब उनको भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए ऊपर जो हायर लेवल के लोग होते हैं। तो उससे जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा तो बिज़नेस में एक तरह से मतलब उनसे कम्युनिकेशन बिल्डअप करना भी ज़रूरी होता है बाकी लोगों से, ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो जॉब सेटिस्फाइड हो। ओके, ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, जैसे आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। ट्रेनिंग वगैरह में ये सब सिखाया जाता है आपको। जब किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि अच्छा आपको ये चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है, आपको इस तरीके से बोलना है, आपको इस पर्टिकुलर लिमिट दी जाती है कि आपको इतने लिमिट में ही रहना है, कुछ बाउंड्री सेट कर दी जाती है, राइट। तो हम उसका ओवरव्यू एक पॉइंट में समझ लेते हैं। मतलब वो तो ऐसे चीज़ें थी जो मैं ऐसे समझा रही थी आपको। ये कम्युनिकेशन क्या होता है, एक वे होता है मैनेजमेंट के लिए, मतलब अपना जॉब वो करा सके, राइट। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वो एम्प्लॉयज़ से जो है आसानी, जैसे होते हैं कुछ लोग जो मतलब एक तरह से आपको कह सकते हैं कि होता है ना, मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेते हैं, राइट। अपना प्रमोशन वगैरह का भी दे देते हैं कि अच्छा आपका प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे करके आपका जॉब करवा लेते हैं, राइट। गुड मैनेजर्स एक तरह से गुड क्या कुछ कह रहे थे? मैडम, हाँ मैडम, वही मीठी मीठी बात कर के करते ऐसा। जी, अपना जॉब कराने के लिए मीन्स ये कम्युनिकेशन का ही एक जरिया है कि वो किस तरीके से आपको मना लेते हैं वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। ओके, गुड मैनेजर्स क्या होते हैं, गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं। आज के टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हाईली स्किल्ड नहीं है, बट आर ऑल्सो मोर आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब क्या, तो बहुत फ्लुएंट होते हैं, फ्लुएंसी होती है उनके अंदर किसी भी अदर प्रोफेशनल के कंपैरिजन। ओके ओके, आप ये देख लेना। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि हमें सिखाता है मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस में किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर स्किल। आप अपनी स्किल को कैसे इम्प्रूव करोगे। अभी तक जो मैंने समझाया, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स भी कहे थे, मोटिवेशन भी मिलता है आपको उसमें जैसे मैंने अभी बताया कि बिजनेस में क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, राइट। किस तरीके का मोटिवेशन मिलता है आपको? मैडम रिपीट करिए एक बार, कुछ समझ में नहीं आया। बिजनेस में मोटिवेशन किस तरीके से मिलता है आपको? प्रमोशन मैडम। प्रमोशन के थ्रू, राइट। और या फिर हम इंस्पायर कर देते हैं समवन, किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब आप कर दो, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, राइट। बिना प्रेशर डाले आप अपना काम निकलवा लेते हो और उससे क्या होता है, उनका मोरल भी डाउन नहीं होता है। अगर आप उनको मोटिवेट कर देते हो, बूस्ट अप कर देते हो, तो मोरल भी डाउन नहीं होता। जॉब सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं इसको। और इससे क्या Ma'am, by taking feedback from the people about the products. हाँ, कह सकते हैं आप, उनसे फीडबैक भी ले सकते हो कि मतलब आप इवन आप जब कंपनी वगैरह में हो ना, तो सामने वाले से आप पूछ सकते हो कि क्या मैंने अच्छे से बोला कि नहीं, वो भी एक फीडबैक हुआ। हाँ सर। सामने वाले से पूछ सकते हो अच्छा मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि नहीं, तो सामने वाला आपको अपनी जो भी
डीमेरिट्स होंगी या जो भी आपके अंदर कमियां रही होंगी वो बता के आपको अच्छे से इम्प्रूव भी कर सकता है, राइट? Yes, ma'am. ओके देन, तो अभी हम बात करते हैं कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहले जैसे कि कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह हो, या मैं तो फिलहाल अभी आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप वो उसको पढ़ लो, देख लो, समझ लो। ओके, अभी जो मैं समझा रही हूँ उसको अच्छे से सुन लो। कुछ कोलैब टूल्स का मैं बता रही हूँ। जैसे आपके पास जैसे आज के टाइम पे बिजनेस वगैरह में लोग कैसे कौन से टूल का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए? बिजनेस वगैरह में टूल्स का यूज़ किया जा रहा है कम्युनिकेशंस के लिए? गूगल मेल ट्रांसलेटर, के थ्रू ज्यादा कम्युनिकेशन बिजनेस उसके वगैरह। गूगल अलावा गूगल आई ट्रांस अभी आई राइट आई नाउ हम लोग किस तरीके से हम लोग कौन से टूल का यूज़ कर रहे हैं? जीमेल, व्हाट्सएप में Google Meet. गूगल मीट का यूज़ Google कर रहे Meet. हैं, राइट? कंपनी वगैरह में स्लैक और आसना सुना होगा आपने, कम्युनिकेट करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, राइट? हेलो, स्पीड में नहीं सुना कंपनी मैं। स्लैक, SLACK, स्लैक, स्लैक Slack. सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है मैडम। नहीं सुना। डिस्कॉर्ड, स्लैक, गूगल डॉक तो सुना ही होगा आपने, गूगल डॉक। ये Google सारे Docs. हाँ, गूगल डॉक्स सुना है। ये सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर सामने वाले से डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन और जान भी सकते हो, राइट? मैम राइट डाउन कर दीजिए मैम, क्या बोला आपने? ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। मैं नेक्स्ट टाइम ना वाइट बोर्ड रखूंगी अपने साथ में, क्योंकि चैट में जस्ट अ सेकंड। स्लैक, मैम मैं एक एडवाइस दूँ क्या? हाँ जी बोलिए। डिस्कॉर्ड, मैम ये जो मतलब सब अनम्यूट और म्यूट करके जो आंसर रिप्लाई दे रहे हैं उसके बढ़िया चैट बॉक्स में आंसर दें, और आप चैट बॉक्स को कंटिन्यू रीड करते रहिए, तो इससे क्या होगा, बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा। ऐसे दूसरा कोई माइक ऑन कर रहा है तो आपका आवाज नहीं आ रहा, डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, मैं एक्चुअली क्या करूँगी, सबको बोलूँगी म्यूट किए रहेंगे, अपना क्वेश्चन जो भी होगा या आंसर वो चैट में रिप्लाई कर देंगे। ओके, एंड आप फिर मुझे 1-2 सेकंड देना, मैं चैट भी रिव्यू करती रहूँगी, फिर वापस इस स्लाइड से उस स्लाइड पे आने में भी थोड़ा वो रहेगा, बट मैं वो कवर अप कर लूँगी अगर आप 1-2 सेकंड वेट कर लोगे। ओके, हेलो, ओके देन। यस मैम। ओके मैडम। अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो बाद में, बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछना। आप अगर पूछना होगा तो हैंड रेस कर लेना, आप कुछ भी, या यहाँ पे हैंड रेस करने का भी आप हैंड रेस कर लो, वहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि आप अपनी बातें भी रख सकते हैं। ओके ओके देन, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे, इस पे फोकस किया जाएगा। अभी मैंने बताया अपने कलीग्स वगैरह से आप जो है बात करते हैं या फिर उनको मोटिवेट करते हैं, इवन खुद भी मोटिवेट होते हैं अपने कलीग से कि ये कितना अच्छे से बोल ले रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, राइट? उस पर वो किस तरीके से बोला, हम उसे सीखने की कोशिश भी करते हैं, राइट? या हमसे सामने वाला सीखने की कोशिश करता है, राइट? नेक्स्ट है, आप फीडबैक लेके भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिक्रूटर्स क्या चाहते हैं हमसे, राइट? रिक्रूटर्स क्या चाहते हैं हमसे कि वो हमें क्यों हायर करें, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, मीन्स वो क्या रीज़न देखते हैं, वो क्या चीज़ देखते हैं हमारे में कि वो उस पर्टिकुलर बंदे को या बंदी को हायर कर लें अपने कंपनी के लिए। कोई बता सकता है? स्किल्स में वो आपका क्या क्या देखते हैं कि आपको ये आ रहा है और मैं आपको हायर कर लूँ? गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? One should have required skill. आपके अंदर क्या होना चाहिए? One should have required skill. हेलो मैम। स्किल में क्या होना चाहिए, या बोलिए। मैम कंपनी में हायरिंग का प्रोसेस इस बेस पे रहता है कि कम्युनिकेशन पे नहीं रहता है, टोटली रहता है। मैं टोटली मैम डिपेंड रहता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या कर सकते हैं। जैसे टास्क तो सब पूरा करेंगे, मजबूरी में पूरा करेंगे, आप नहीं कोई और करेगा, करना तो है सबको, लेकिन कुछ अलग क्या कर, जैसे उनका क्या हुआ, आपने वहाँ मतलब एक टास्क दिया आपको,
तो उस टास्क को कितने मिनिमम टाइम में कर दिया आपने, जी। ठीक है। टास्क को खत्म करके किसी और टास्क में आपको मतलब करना है उनके तो साथ क्या में। कंपनी को पहले से पता होता है कि आपने ये टास्क किया हुआ है? जी नहीं, वो वहाँ पे ऐसे इसलिए वो अगर आपके रिज्यूम में मेंशन होता है मैम, जी, और रिज्यूम ही देख के वो बता देते हैं कि कितना क्या काम करेगा जी। जी रेज्यूम देख के तो वो तो मैं भी समझती हूँ कि रेज्यूम देख के वो आपका टास्क वगैरह समझाए कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा हमारे लिए समझ, लेकिन आपको प्रूफ भी तो करना होगा ना कि मैं कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन मस्ट है मैडम। कम्युनिकेशन आपको कॉन्फिडेंट प्रॉपरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए मैडम वहाँ पर। आपका रेज्यूम अच्छा हो लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आपको हायर क्यों करेंगे? हो सकता है उनको लगेगा कि ये तो बस इसके पास स्किल है टास्क करने का, लेकिन वो पर्सन सामने वाले से बात नहीं कर पाएगा अच्छे से, ये मेरे लिए डीमेरिट होगा, ये भी तो हो सकता है ना। यस मैडम, ओके देन ये मेजर प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन सब कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अनिवार्य अंग है कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अगर किसी से भी आप इंडिविजुअल से या किसी भी कंपनी वगैरह में रिक्रूटर से बात करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस तरीके से परसुएड मतलब उनको किस तरीके से आप मना लेते हो या कन्विंस कर लेते हो, आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। कन्विंसिंग पावर भी कम्युनिकेशन में भी आ जाएगी, किस तरीके से वो आपको मतलब समझ रखे हैं ये बंदा कर सकता है, इसको अगर ट्रेनिंग दी जाए। आपको आपने बोला टास्क ना, उनको लगना चाहिए कि आप ये टास्क कर, लेकिन उनको ये भी तो फील करा कि हाँ मैं अगर वो अडेप्टेबल नेचर का, मुझे ये अगर काम दिया जाएगा तो मैं सीख के जल्दी से कर भी लूँगा, राइट। ओके देन, कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो मैम। ओके, बोरिंग तो नहीं जा रहा है क्लास? नो मैडम। ओके नो मैम। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे ग्रेजुएट्स का क्या देखते हैं वो फ्लुएंसी वगैरह उनके अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए, राइट। रिक्रूटर्स ये कुछ गुड कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, जो किस तरीके से ये दे दिया। फिर वी आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन रिलेट टू वाइड रेंज ऑफ पीपल, मीन्स क्या वो बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग को देख के